Is the board visible? Yes. So in the last class we have done this rank nullity theorem and some problems on this. So rank and nullity is what? If you have a map from T U to V, it's a linear map, then rank of T plus nullity of T is the dimension of domain space vector. This is the theorem, and we have done, I think this last problem it was completed. One map was given to you, V4 to V3. Then the problem was that verify the rank nullity theorem. So it was done, I think. Yes, sir. Next, one problem is left. In the problem set, only one problem is there. Means in your syllabus, there are several problems. If you want, you can do. Let U be a vector space of dimension n, and T is a linear map from U to V. And moreover, it's an onto map. It's a linear onto map. Linear and onto map. What does it mean? Onto map means what? Onto means what? Range space is equals to codomain. Yes. Right. Yes. Range space is equal to codomain. It is the definition. So map is linear and map is onto. And one more thing is given that dimension of this U is n. Then prove that T is 1, 1 if and only if dimension of V is n. So it's a very small, obvious result. You will see that it's very obvious when I will prove it. So what you have dimension of U. Whenever you want to prove something, as I told you, firstly collect all the information, whatever the information are given to you. So one thing is given that dimension of U is n. Write it here. Second thing is given that T is onto, linear and onto. So onto means, range of this T will equal to how much? V. V का मतलब you can say dimension of V के equal. जब ये set V के equal हो गया तो it means what? V is a vector space, it is also a vector space, तो दोनों की dimension same होगी, है ना? That means you can say rank will be equal to dimension of V. Actually I should write like this, not this. क्योंकि जब डायमेंशन की बात कर रहा हूँ तो डायमेंशन मीन्स यू हैव सम नंबर. नंबर कहाँ आएगा? रैंक. ये गिवन है आपको कि रैंक इसकी डायमेंशन वी के इक्वल है और डायमेंशन यू एन है. तो शो करना है टी इज 1, 1. कैसे शो करें 1, 1 बताइए. कोई रिजल्ट ऐसा आपको अगर याद हो. I have done a theorem. T is 1, 1 if and only if. क्या थ्योरम थी? Null space is 0. हाँ सही है. नल स्पेस इज 0, है ना. ये एक थ्योरम थी, हमने किया है. T is 1, 1 वी नो. या लिख सकते हैं आप उसे. We know that T is 1, 1 if and only if it is both sided true. Kernel space is a null space. जो null space है NT, its kernel space is a zero space. It has only 0 element. इसका मतलब क्या था? nullity कितनी है इसकी? अगर it's a zero space, what is nullity? Nullity क्या बताया था? Dimension of null space. How much? 0. 0, है ना. ये है हमारे पास. तो इफ यू वांट टू शो 1, 1 यू कैन डू नलिटी इज 0. अगर नलिटी 0 आ गई तो 1, 1 हो जाएगा बाय दिस थ्योरम. इट वाज अ थ्योरम. तो यहाँ पर आपके पास रैंक गिवन है.
नलिटी शो करना है, तो किस थ्योरम से शो कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को? बाय रैंक नलिटी थ्योरम, है ना? देखो, बाय रैंक नलिटी थ्योरम इट सेज rank of t plus nullity of t this equal to dimension of u। ये हमें गिवन है n है, ये प्रॉब्लम में गिवन है, इस इक्वल टू n। अब हमें प्रूफ करना है इफ एंड ओनली। तो फर्स्टली आई एम कंसीडरिंग लेट अस सपोज t इज 1 1, तो राइट हैंड साइड प्रूफ कर देते हैं, लेट t बी 1 1। तो क्या होगा 1 1 के लिए? अभी मैंने क्या लिखा था, ये इफ इट इज 1 1 देन nullity is how much? 0, है ना? So by this putting in 1, ये अगर क्वेश्चन आप मान लें, suppose it is your 1, then 1 implies that RT plus 0 is equal to n. This implies that RT is equal to n. What does it mean? क्या हुआ है? हाँ बताइए। अब RT अगर n है तो इसका मतलब क्या हुआ? Can I say dimension V is n? यहाँ पर हमें क्या गिवन था? ऑन टू नेस गिवन थी ऑलरेडी। तो RT बेसिकली व्हाट? V के इक्वल है ना? So that means RT is n. This implies that dimension of V is n, है ना? क्योंकि RT डायमेंशन V इक्वल क्यों है? Since map is on to, T is on to। अगर ये on to नहीं होता then I cannot write this। तो T on to है, तो जो RT होगा वही डायमेंशन V होगा, है ना? ये हमें गिवन RT is equal to। Is it clear? No? यस सर। ठीक है, तो भाई मौला सुमन रहमान बताइए। सर मैंने अभी ज्वाइन किया। क्यों क्यों लेट की ज्वाइन किया? क्लास टाइम नहीं पता आपको? चलिए, जी सर, कनेक्शन मेरा तुषार वर्मा, हाँ तुषार, PHB 38 है नहीं है क्लास में ये? जी बताइए तुषार, आप भी अभी आए हैं क्या? नो सर। बताइए, समझ में आइए जो कराया मैंने? नहीं समझ में आया कुछ? किसकी समझ में आया और बताओ कोई? ट्वेल्व स्टूडेंट्स हैं, कोई 11 है, बताइए किसी की समझ में नहीं आई बात ये? आलोक यादव आप बताओ। यस सर। क्या कैसे करा बताइए, क्या कंसेप्ट लगाया मैंने इसमें? सर पहले तो ये T11 दे रखा है, इससे हमारा नल स्पेस 0 हो गया है, और रैंक नलिटी थ्योरम लगाइए सर। ये रैंक नलिटी थ्योरम होती है, यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, ठीक है? ये इस कोर्स में सबसे ज्यादा बैकलॉग्स आती हैं, ध्यान रखना। और ऑफलाइन में, ऑनलाइन में ऐसा नहीं है कि बैकलॉग्स नहीं आएंगी आप लोगों की। ये क्विज आपका जो होगा, ऐसी कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स होंगी, 30 मिनट्स होंगे आपके पास। चीटिंग करके भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। क्वेश्चन ही ऐसे नहीं होंगे चीटिंग कर पाओ आप। सर कितने ऑब्जेक्टिव आएंगे? 30 मार्क्स के 10 ऑब्जेक्टिव होंगे, 10 ऑब्जेक्टिव 30 मिनट्स में आप नहीं कर सकते, ये तय बात है ये। तो इसलिए, और दूसरा मैं वाइवा लूंगा, असाइनमेंट नहीं दूंगा मैं, ध्यान रखना। तो अभी लास्ट कोर्स में 2D में बच्चे फेल हुए हैं, फिर बाद में रो रहे थे, बहुत कॉल आई, लिटरली रो रहे थे कि सर हम लोग फेल हो जाएंगे। मैंने कोई बात नहीं, अगले साल फिर एग्जाम दे देना।
तो इसलिए इस कोर्स को सीरियस लीजिए आप लोग। ऑनलाइन में ये मत सोचना कि पास हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। और लीनियर अलजेब्रा इज अ प्योर कोर्स, आपको पहले ही बताया मैंने। ये आपने देख लिया, यहाँ पे थ्योरम्स हैं, प्रूफ्स हैं, इट इज नॉट अप्लाइड। आपने एनए पढ़ा होगा, सोचते होंगे एनए की तरह है। एनए चल रहा है साथ में। अच्छा, एनए तो लास्ट सेमेस्टर में था आपका। साथ में क्या कोर्स चल रहा है? पीडी है। यस सर। हाँ, पीडी से बिल्कुल डिफरेंट है ये। इट्स नॉट लाइक यू हैव अ फॉर्मूला, अप्लाई द फॉर्मूला, फाइंडिंग रूट्स एंड देन राइटिंग द सॉल्यूशन। पूरा कंसेप्चुअल बेस्ड है। तो इसलिए आपका भी मैं क्विज लूंगा तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि आप कहाँ पर है। इसलिए सर इसे कब हो सीरियस, सकता है टेस्ट? कभी भी हो सकता है। रात में अनाउंस कर दूंगा मैं, कल क्विज है, इसलिए आप रेडी रहें। सर सर वो एक रिक्वेस्ट थी कि हो सके संडे को मत लीजिएगा, हाँ, संडे को संडे को नहीं लूंगा, मैं। संडे को मैं भी वर्क नहीं ठीक। करता। संडे के अलावा ही लूंगा। ओके सर। ठीक है ना, आप प्रिपेयर रहें। चलिए, अब इसका कन्वर्स पार्ट कौन बताएगा, बताओ मुझे। चलो, वन साइड इज डन। कन्वर्सली, बिकॉज इट इज टू साइडेड, इफ एंड ओनली इफ है, तो कन्वर्स में क्या अस्यूम करूंगा अब मैं? डायमेंशन v इज n। ठीक है, चलो बताओ कौन प्रूफ कर सकता है कि t इज 1 1 नाउ। अब हमें प्रूफ करना है t इज 1 1। कर सकता है कोई? इसी का इस्तेमाल करना है, रैंक रिलेटिव थ्योरम का। आई एम गिविंग यू हिंट अगेन, आई हैव, यू विल बी यूजिंग दिस रैंक रिलेटिव थ्योरम। उससे 1 1 ऐसा जाएगी। बताओ। आर टी प्लस एन टी इज इक्वल टू एन, डायमेंशन ऑफ यू गिवन है। क्या करें बताइए अब इसमें? कैसे शो करें कि दैट मैप इज 1 1? ये क्लेम है। बोलिए। अगर डायमेंशन वी एन है, और क्या गिवन है साथ में आपको? वी किसके इक्वल है? ये मैप गिवन था ऑन टू, तो इसका मतलब क्या है? क्यों भाई, ये लाइट नहीं आ रही है क्या? बंद कर गया ऑन यस तो सर। दोबारा बताइए भाई सर। बी इज इक्वल टू आर टी। हाँ भाई, ये जो है आर टी किसके इक्वल हो जाएगा? एन के, क्योंकि हमें गिवन है एन मैप ऑन यस। टू है। तो अगर मैप ऑन टू है तो रेंज जो है इक्वल टू डायमेंशन बी हो गया। डायमेंशन बी आपको यहाँ पर गिवन है। तो यहाँ पे एन लिख सकता हूँ मैं, एन प्लस एन टी इज इक्वल टू एन। एन से एन कैंसिल आउट हुआ।
sir. Yes, sir. Yes, sir. है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर इफ आई हैव चूजन द कंडीशन डायमेंशन v इज n, तो रैंक नलिटी थ्योरम से दिस इज द थ्योरम एंड u इज ऑलरेडी गिवन टू यू n, ये भी n है, तो नलिटी 0 आ गई। एंड इफ नलिटी t इज 0 इट मींस व्हाट, t इज T is 1. है ना। तो ये आपका सिंपल एक प्रूफ था बाय दिस वे। तो इट मींस व्हाट कि अगर आपको ऑनटूनेस गिवन है मैप की और डायमेंशन ऑफ u पता है, तो उससे हम डायमेंशन v निकाल सकते हैं और 1 - शो कर सकते हैं। ओके, तो आपको कोई दो चीज मालूम होनी चाहिए। वैसे भी कॉमन सेंस की बात है कि इफ यू हैव अ क्वेश्चन 3 अननोन्स आर देयर 1 2 3, तो इफ यू नो एनी 2 थर्ड यू कैन फाइंड, है ना। अगर RT और डायमेंशन u पता है यू कैन फाइंड NT। इफ RT NT इज गिवन टू यू कैन फाइंड डायमेंशन ऑफ u। इफ NT एंड डायमेंशन u इज गिवन यू कैन फाइंड RT, है ना। ये क्या है, बेसिकली 3 अननोन्स हैं। देखिए इट इज लाइक a + b = c। तो इस प्रॉब्लम में जो हमने प्रूव करी है, आपको a गिवन था और c गिवन था, b का हमने यूज करके शो कराया कि t is 1 1। ओके, बढ़े आगे बढ़े भाई, बताइए। Yes, sir. चलो, सो नेक्स्ट टॉपिक वी हैव 4.4 इन दिस, इनवर्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इनवर्स ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। बेसिकली यू नो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज व्हाट, इट्स अ मैप। तो किसी मैप का इनवर्स अगर हम ले, एनीबॉडी नोज के किस मैप का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इफ यू हैव सम मैप, तो उसका इनवर्स अगर एग्जिस्ट करेगा उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। यू मस्ट हैव स्टडीड इन योर आई थिंक 11th 12th जहाँ मैप पढ़ा होगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि टी एक मैप है U2V, तो कैन आई से अबाउट समथिंग अबाउट इट्स इनवर्स। क्या मैं इनवर्स डिफाइन कर सकता हूँ ऐसे करके किसी का भी, लाइक दिस Bijection map. यस एग्जैक्टली। किसने जवाब दिया ये? Mullah Shons. हाँ सुमन। तो मैप मस्ट बी बाइजेक्टिव, है ना। अगर बाइजेक्टिव मैप नहीं है, आई कैन नॉट टॉक अबाउट दिस इनवर्स मैप। अगर कोई मैप आपको गिवन है, यू हैव टू चेक वेदर इट इज 1 1 और 1 2। अगर 1 1 1 2 एक साथ होता है इसे हम बाइजेक्टिव कहते हैं।
So if map is bijective, only then we can talk about inverse. Otherwise, inverse will not exist. तो वो यहाँ पर अब बात करेंगे इनवर्स ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कि अगर कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है तो वेदर द इनवर्स एग्जिस्ट और नॉट. इफ इनवर्स एग्जिस्ट, व्हाट अबाउट लीनियरिटी? क्या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मैप भी, इनवर्स मैप भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनाएगा, लीनियर मैप होगा. ठीक है. These things we will be discussing in this section, inverse of linear transformation. So first definition, मैप के लिए इसके लिए हम यूज करेंगे इस टर्म को कहते हैं नॉन सिंगुलर. A linear map T from U to V is called non-singular. Non-singular. If it is 1 1 and on 2, 1 1 and on 2 both, इसी को आपने जो बताया अभी बाइजेक्टिव, दैट मीन्स बाइजेक्टिव. तो लीनियर मैप के लिए हम ये टर्म यूज करते हैं नॉन सिंगुलर, है ना. वैसे तो नॉर्मली कोई मैप है अगर आप, तो आप कहते हैं बाइजेक्टिव, लेकिन अगर कोई लीनियर मैप बाइजेक्टिव है तो व्हाट आई विल से दैट इट इज नॉन सिंगुलर. ठीक है. तो a linear map is non singular if it is bijective map. तो नॉन बाइजेक्टिव होगा तो इसका मतलब क्या हुआ, इट विल बी हैविंग इनवर्स आल्सो, है ना. तो ये एक फैक्ट है. इस एज ए फैक्ट यू कैन से दैट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉन सिंगुलर if and only if it has an inverse. It has an inverse. बताइए, इक्विवेलेंट है ना ये चीजें. If you are saying bijective, it means what? You are saying that it has inverse. तो ये कह सकता हूं मैं, a linear transformation is non-singular if and only if it has an inverse. Okay? इस मैप को हम आइसोमॉर्फिज्म भी बोलते हैं. If you have a map which is bijective, non-singular, we say it is an isomorphism. अभी यहाँ क्लास चल रही है. हेलो, am I audible? यस सर. यार क्लास बीच में डिस्कनेक्ट हो जाती है, नेट चला जाता है. मैंने मोबाइल का जोड़ा इसका नेट जल्दी से. अब इसमें ये हुआ, वो जो स्लाइड्स थी वो खत्म हुई होंगी. चलिए अभी 10 मिनट्स हैं. वो जो स्लाइड थी वो सेव होके उधर चली गई है, इसी को कंटिन्यू कर लेते हैं आगे. डिपार्टमेंट में नेट प्रॉब्लम बहुत रहती है. अब हो रहा है कि कुछ क्लासेस आपकी जो है वो ऑफलाइन शुरू हो गई है. तो सुबह ऑफलाइन क्लास होती है, कुछ लेने आना होता है. चलिए, व्हाइट बोर्ड विजिबल? यस Yes, सर. sir. चलो ठीक. बस अब ये है कि वो जो स्लाइड्स थी वो आपकी उधर रिकॉर्ड होके सेव हो गया. रिकॉर्ड में मैं लेक्चर शेयर करूंगा तो वो स्लाइड्स आपके वहां आ जाएंगी. ठीक है. ये न्यू स्लाइड बन गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं. तो स्टिल वी हैव सम 8 मिनट्स. सो 4.4 आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस इनवर्स ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. इनवर्स ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. तो मैप नॉन सिंगुलर क्या होगा? तो इफ अ लीनियर मैप इज बाइजेक्टिव वी से इट्स अ नॉन सिंगुलर, है ना. ये डेफिनेशन नॉन सिंगुलर की. So a linear map, a linear transformation is non-singular if and only if it has an inverse. Okay, or you can say it is bijective.
सो नाउ हाउ टू फाइंड an inverse linear transformation, कैसे फाइंड करें? फाइंड इज दैट, सपोज एक प्रॉब्लम ले लेते हैं. वन एग्जांपल आई एम टेकिंग, T is a map from V2 to V2. Okay, V2 to V2 is a map and defined by T of x1 x2. This is equal to x1 comma minus x2. ये एक मैप गिवन है. तो यहाँ फर्स्टली आपको चेक करना है whether it's non singular or not, and if it is not singular then find its inverse. Problem is check it is non singular, and if it is then find the inverse map. Find the inverse map. तो इनवर्स में क्या होता है, जो आपका कोडोमेन है वो डोमेन बन जाता है ना, और जो डोमेन है वो कोडोमेन. अब यहाँ पर तो V2 से V2 है तो बोथ विल बी सेम. यूजुअली क्या होता है कि इफ T इज फ्रॉम U to V and map is bijective, then you can define the inverse. Inverse will be from V to U. Okay. Okay, students. यस सर. Yes. यस नो बोलते रहा करो, मुझे पता चलेगा आप लोग सुनना, पता चला बोले आ रहा हूँ मैं, आपके नेट ही नहीं है. तो यहाँ पर पहले तो चेक करना है कि नॉन सिंगुलर है या नहीं है. तो नॉन सिंगुलर के लिए क्या चेक करना है, वेदर इट इज 1 1 ऑन 2. ठीक है. तो यहाँ पर आपको एक एडवांटेज मिल रहा है कि यहाँ पर डायमेंशन पता है, यू की डायमेंशन 2 है ना. तो इफ आई नो द मैप इज 1 1 ऑन 2, तो अगर कोई एक चीज पता हो तो दूसरी आप में आइडेंटिफाई हो जाएगी बाय रैंक नलिटी थ्योरम. जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू हैव, मैं इसका नल 1 1 इसके लिए क्या चेक करूंगा, व्हाट इज द नल कर्नल स्पेस. कर्नल स्पेस इसका क्या है, कर्नल कितना है. सो उसके लिए क्या चेक करना होता है भाई, यू विल चेक व्हाट, फॉर व्हाट एलिमेंट इट इज 0 है ना, Zero, zero. फॉर नल स्पेस. तो ये कितना आ रहा है, x1 x2 की इमेज कितनी है, x1 कॉमा माइनस x2 इज इक्वल टू 0 0. तो इट मीन्स व्हाट, x1 इज 0, x2 इज 0 है, 0 आ रहा है. तो दिस इंप्लाइज दैट नल स्पेस इज 0 स्पेस, क्योंकि सिर्फ 0 ही आया आपके पास, कोई फ्री वेरिएबल नहीं आया यहाँ पे. अगर फ्री वेरिएबल आ जाता तो फिर हम देखते हैं कि उसकी डायमेंशन क्या. तो अगर नल स्पेस 0 है तो क्या बताया था मैंने, नलिटी T इज 0, and this implies that T is 1 1 है ना. 1. अच्छा, अब T is 1 1 है तो रैंक नलिटी थ्योरम से, बाय रैंक नलिटी थ्योरम RT प्लस NT इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ U. तो RT तो आपको नहीं पता, नलिटी आपने 0 निकाल ली, और डायमेंशन U कितनी है यहाँ पर, क्या है डायमेंशन U की, 2 है ना. तो इट मीन्स RT इज 2, और ये किसके इक्वल आ गया, ये V2 के इक्वल है ये तो. ओके, सो व्हाट आई गॉट हियर के रेंज स्पेस इक्वल टू कोडोमेन. so this implies that what map is On 2. on 2 है ना. यहाँ से हमें पता चल गया कि map is on 2. so T is 1 1, T is on 2, so this implies that T is bijective है ना. and bijective है तो क्या हो गया, and hence Non-singular. non-singular. so by rank nulity theorem easily you can find this thing when you know the dimension of domain and nullity. चलो, now if it is non-singular तो inverse will be existing. तो inverse के लिए हम क्या करेंगे, you can write here this implies that T inverse exists, and T inverse will be from V2 to V2. यहाँ पर अब ये डोमेन हो गया, ये कोडोमेन. तो अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है तो व्हाट विल बी हैपन, कुछ इमेज आएगी इसकी. तो हमने मान लिया लेट T इनवर्स y1 y2 इज इक्वल टू सम x1 x2 है ना. मुझे मैप निकालना है, व्हाट इज द मैप. तो हमने माना इनवर्स मैप y1 y2 जो है उसकी इमेजेस कुछ x1 x2 है, क्योंकि ये भी 2 डायमेंशनल है. ठीक, नाउ इफ इट इज सो, तो व्हाट अबाउट y1 y2, कैन आई मूव T इनवर्स हियर,
क्या बन जाएगा ये टी ऑफ x1 कॉमा x2 ये लिख सकते हैं। टी इनवर्स को इधर लेगा या मल्टीप्लाई बाय टी, यू कैन से ऑपरेटिंग ऑन टी बोथ साइड। और टी x1 x2 की इमेज क्या थी, व्हाट इज द इमेज, ये तो गिवन है आपको ऑलरेडी, x1 कॉमा माइनस x2, तो दिस विल बी इक्वल टू x1 कॉमा माइनस x2। इसे अगर हम कंपेयर करें तो यू विल बी गेटिंग x1 इज y1 एंड x2 इज माइनस माइनस है ना। तो ये जो x1 x2 की वैल्यू है इसे उठा के वापस पुट कर दीजिए यहाँ पर इधर। सो दिस इंप्लाइज दैट, इसके बाद ये स्टेप t इनवर्स y1 y2 इज इक्वल टू x1 की वैल्यू होगी y1 एंड x2 की माइनस y2। तो ये आपके पास इनवर्स मैप आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ y1। सो दिस इज द मैप। तो इट इज द वे हाउ टू फाइंड इनवर्स मैप। क्या करते हैं, इनवर्स मैप एग्जिस्ट करेगा तो उसकी इमेजेस सपोज कर लेंगे ये है, और फिर t को इधर ऑपरेट कर दिया और सॉल्व कर लिया। ओके यस सर। चलिए, तो इन द नेक्स्ट क्लास, टुमारो वी हैव नेक्स्ट क्लास ऑन मंडे वी विल प्रूव दैट इनवर्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज अगेन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, डोंट मिस योर क्लास। कंटिन्यू करेंगे उसे नेक्स्ट क्लास में। ओके थैंक यू सर।